How much hair loss is normal in a day? According to science, hair grows in cycles. Anagen phase, which is hair growth phase, जिसमें hair बड़े होते हैं, usually 2 to 6 years रहता है on the scalp. इसके बाद आता है Cetagen phase, जो कुछ weeks रहता है, Telogen phase, जो कुछ months रहता है, and then the hair falls off. Now the important thing is that if your hair is falling, it is falling in which stage? Now you can see a study on the screen, जिसमें इन्होंने यही चीज देखी. What they did, very surprisingly, they asked the patients to wash their hair on the sink, और उस पर उन्होंने एक कपड़ा रखा जिसपे गिरते हुए बाल उस कपड़े में लगे रहे. So then they found कि ये कौन से स्टेज के हेयर हैं जो गिर रहे हैं. So after this interesting study, I must tell you that there are 4 silent triggers which trigger your hair fall. Then there are 4 to-do things which you can do to decrease your hair fall, to take control of your hair back. And here is exactly what we are covering in this video. So a normally accepted hair fall range is 50 to 100 hairs per day. But you see there has been a study जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है that 1 out of 1000 hairs if falls, it's called normal. Then what is the problem? Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I'm an American board certified hair transplant surgeon seeing hair loss and hair transplant patients every day. In order to find out more such science-backed solutions, do press the subscribe button. At any given point of time, 85 to 90% of the hairs are in anagen or growing phase, or 10 to 15% hairs are in telogen or shedding phase. This is where the 50 to 100 shaft falling every day falls. ये normal है. Now stress and illness can push more and more hair into telogen phase. और telogen के बाद क्या है? The hair falls off. तो आपका hair loss बढ़ जाएगा by stress and medical illnesses. That means routine is a key. This is where routinely will help you. But we'll talk about routinely more in the future videos. Comment routinely in the comment section below अगर आप ये देखना चाहते हैं कि रूटीनली से आपकी हेयर ग्रोथ में कैसे बेनिफिट मिलेगा. वन थिंग टू फाइंड आउट इज अगर आपकी हेयर लॉस से आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, या आपकी ओवरऑल हेयर थिनिंग हो रही है, स्कैल्प शो बढ़ गया है, या दोनों साइड के टेम्पल्स हल्के हो रहे हैं, देन यू आर मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टुवर्ड्स द DHT डैमेज, मेल फीमेल हेयर लॉस. दिस वाज वार्निंग नंबर 1. वार्निंग नंबर 2 इज आप ये देखो कि जो आपके हेयर लॉस हो रहा है उसके नीचे बहुत बड़ा सा बल्ब आपको दिख रहा है क्या? अगर ऐसा है तो भी आपको हेयर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, बिकॉज देन वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन से स्टेज का हेयर लॉस आप महसूस कर रहे हो. नाउ इट इज नोन दैट 50% ऑफ मेन बाय द एज ऑफ 50 एक्सपीरियंस मेल पैटर्न हेयर लॉस, 80% बाय द एज ऑफ 80 एक्सपीरियंस मेल पैटर्न हेयर लॉस. तो ये चीज हमको पता करना बहुत जरूरी है, एज इज क्लियर ऑन द आर्टिकल बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन. सो मिनिएचराइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इट. बाल पतले, हल्के, लेस कलर्ड आपको दिखेंगे, तो सिर्फ बाल गिरना जरूरी नहीं है कि आपको स्कैल्प शो हो रहा है. अगर मिनिएचराइजेशन हो रहा है जो कि मेल पैटर्न हेयर लॉस का एक पार्ट है, तो भी आपको स्कैल्प शो होगा. सो वी नीड टू फाइंड आउट दोनों में फर्क, एंड इसके लिए डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे. नाउ 4 real triggers that causes hair loss which nobody is talking about. Number 1 is hard water. The deposition of calcium and magnesium on the scalp, it causes dryness of the scalp, then it blocks follicle openings. It is very relevant for metro cities like Delhi, Bengaluru, Mumbai men. Number 2 is protein deficiency. Now see, hair strand is made up of 95% of keratin. So we need protein in order to form the hair shaft. अब ये प्रोटीन अगर आप वेजिटेरियन है तो वैसे ही आपको कॉन्शियसली बढ़ानी होगी अपनी डाइट में, अदरवाइज यू मे लूज सिग्निफिकेंट प्रोटीन एंड इट वुड बी लेस फॉर योर हेयर, स्पेशली इफ यू आर जिमिंग विदाउट अ प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट. नंबर 3 स्कैल्प इन्फ्लेमेशन. अगर आपको ऑफ एंड ऑन सिम्बोरिया रहता है यानी डैंड्रफ रहता है, उसकी वजह से इचिंग, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन रहता है, तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम जो स्कैल्प पे अगर बनी रहेगी तो जो आसपास एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट होता है हेयर फॉलिकल को ग्रो करने का, वो नहीं मिलेगा. मैक्सिमम एनर्जी एंड रिसोर्सेज विल बी spent on making the scalp healthy instead of better growth of hair. So we need to make our scalp healthy. Number 4 is phone stress, screen stress, overall stress, poor sleep, poor cycle. So circadian rhythm, सुबह प्रॉपरली उठना, रात को प्रॉपरली सोना, एंड ऑप्टिमल यूसेज ऑफ स्क्रीन, फोन एटसेट्रा विल हेल्प यू reduce your stress level. Once cortisol hormone is in check inside your body, तो उसका जो खराब इफेक्ट आपकी हेयर ग्रोथ पे होना था वो नहीं होगा. You will have better hair. Now, if you want to have a consultation with us for your baldness, for your hair loss, you can WhatsApp us your images on the numbers below.
सो जस्ट डू दीज 4 थिंग्स, 4 चीजें कीजिए। नंबर 1, अपनी एक फोटोग्राफी कीजिए आज, अपनी हेयरलाइन देखिए एंड देन रिपीट इट आफ्टर 8 वीक्स सो दैट यू कैन कंपेयर। अगर उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है प्लीज स्टॉप पैनिक। दूसरा, डेंसिटी भी देखिए फोटोग्राफ में, अगर ज्यादा स्कैल्प शो नहीं बना तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। नंबर 2, स्कैल्प हाइजीन को अटमोस्ट रखिए। शैम्पू ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का हो, जिसमें SLS ना हो और जो आपके स्कैल्प को क्लीन करे। ऑल्सो यू शुड स्कैल्प मसाज एटलीस्ट once or twice a week, just 3 to 4 minutes in order to improve the blood flow. Number 3 is check your diet for good amount of protein. 0.8 to 1 gram per kg weight should be there. तो अगर आप 60 kgs के तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए अपनी डाइट में। Number 4, अगर आपको 6 weeks से ज्यादा 150 स्ट्रैंड से ज्यादा हेयर लॉस होता है तो अपने हेयर डॉक्टर को जरूर दिखाएं, because diagnosis of why you are having hair loss is of very much importance along with the treatment which is important later on. Do not forget to share this video with your family and friends जिनको ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। अगर आप देखना चाहते हैं इन पेशेंट के अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल कैसे आए तो आप लेफ्ट की स्क्रीन को क्लिक करें एंड इफ यू वांट टू नो व्हेन यू शुड स्टार्ट वरीइंग अबाउट योर हेयर लॉस प्लीज क्लिक द लिंक ऑन योर राइट।